Some gifts are wrapped in paper, some gifts are wrapped in love, and then there is one gift that carries life itself, the gift of organ donation. Ladies and gentlemen, as we speak of Shakti igniting the power within, we must also speak of one of the most powerful forms of humanity, the power to give, the power to heal, and the power to continue someone's story even after our own chapter ends. Our next speaker brings with her a cause that is deeply emotional, meaningful, and truly life-changing. It is my honor to introduce Ms. Bhavna Chavaria, the Chief Executive Officer of Chatayu, a non-profit organization committed to creating awareness about organ donation and inspiring people to give the gift of life. With over 16 years of experience in the field of organ donation, Ma'am has dedicated her career to spreading awareness about organ donation. With deep respect, I request Ms. Bhavna Chavaria to enlighten us with her thoughts. I think before Bhavna starts, this was not marketed at all in the emailer. I just happened to speak to Bhavna a week before, and both of us realized that, this is the right platform wherein, Bhavna can pitch in and can make us aware about what organ donation is all about. And that's where, Bhavna is. A big round of applause for her, that she could accept the invitation at such a short notice and could make it here today for all of us. Over to you, Bhavna. Good morning, everyone. Thank you for the wonderful introduction. But before I start my topic, I would like to say thank you, Deshpande ji. A very inspiring and very empowering speech. I mean, you just changed, I think, the atmosphere of the entire hall. So thank you very much. It was great listening to you. So, okay, back to my presentation. I am Bhavna Chhabria and I head an NGO. We work for the cause of organ donation. Today I am going to speak about this life-saving cause. I am going to educate you and hopefully inspire you by the end of the session to pledge your organs for donation after death. I am going to explain the entire procedure of how it works, what is the law surrounding it, what is the need, what is the demand, how many people are actually awaiting a life-saving transplant. So before starting my presentation, before starting my talk, I usually show a short movie to the audience to familiarize them with this topic. Without further ado, I would like to start the movie. Hava
मॉडल काका, रंग कितने रंग के होते हैं? लाल, नीला, पीला, हरा। हरा कैसा होता है? अब कैसे? इस फिल्म को देखने के बाद अनेकों लोगों ने नेक दान करने का निश्चय किया। So as we all saw, the movie was about eye donation. I am sure यहाँ present सभी लोगों ने eye donation के बारे में सुना है। सबको पता है eye donation क्या होता है, राइट? जब एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखों का दान करता है तो वो दो लोगों को ये खूबसूरत जीवन देखने का मौका देता है फिर से। सबको पता है, राइट? आई एम अज्यूमिंग सबको पता होगा यहाँ पे, यस? अब आप लोगों से एक और सवाल पूछना चाहूँगी। आप लोगों में से कितने लोगों ने अपनी आंखें दान करने का निर्णय लिया है? ओके, क्वाइट अ फ्यू हैंड्स। हम सबको पता है आंखें मृत्यु के बाद ही दान करनी होती है, वैसे भी उनका कोई काम नहीं होता मृत्यु के बाद, फिर भी हम इस बारे में सोचते नहीं हैं। दो लोगों को ये खूबसूरत जीवन देखने का मौका मिलेगा, फिर भी हम नहीं सोचते हैं, हम ये निर्णय नहीं लेते हैं, हम अपने घर वालों को नहीं बताते हैं कि हम मृत्यु के बाद हमारी इच्छा है कि हमारी आंखों का दान किया जाए ताकि दो लोगों को फिर से एक बार देखने का मौका मिल सके। इसी तरह से ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी कई लोगों को पता होता है, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होता। लेकिन आई डोनेशन के बारे में इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी, गवर्नमेंट की कैंपेन्स रन होने के बाद भी आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आई डोनेशन के लिए वेट कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूँगी। अपनी संस्था के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। शतायु जो नाम है हमारी संस्था का, वो एक संस्कृत आशीर्वाद से लिया गया है, जिसका शतायु भव, जिसका मतलब है 100 साल जी। हम शायद 100 साल ना जी पाए, लेकिन यदि हम अपने अंगों का दान करते हैं तो 100 साल या उससे भी अधिक जी सकते हैं दूसरों के जरिए। शतायु एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सपोर्टेड है और गोविंद भाई सी पटेल फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। यह संस्था की शुरुआत श्री दीपक पटेल जी ने की थी। अहमदाबाद की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, उनके चेयरमैन है वो। 2004 में एक रूटीन टेस्ट के दौरान 2001 में एक रूटीन टेस्ट के दौरान हमें पता चला, डॉक्टर ने कहा आपका हार्ट सिर्फ 20% काम कर रहा है। एक हफ्ते पहले ही वो वैष्णो देवी जाके आए थे, सब कुछ नॉर्मल था। उनके पिताजी की टेस्ट होने वाली थी तो उन्होंने सोचा कि मैं भी करवा लेता हूँ, और तब उन्हें पता चला कि उनका हार्ट बहुत कम काम कर रहा है। उन्हें कुछ समय तक दवाइयों पे रखा गया, पर कहा गया कि अल्टीमेटली आपको हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। 2004 तक उन्होंने दवाइयों के सहारे अपना जीवन बिताया। उसके बाद उनके हार्ट की हालत और ख़राब हो गई और उन्हें कहा नाउ इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, यू हैव टू गेट अ ट्रांसप्लांट। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्हें इमीडिएट बेसिस पे हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। इंडिया में तब ना इतनी अवेयरनेस थी, ना इतनी फैसिलिटीज़ थी, तो उन्होंने सोचा कि हम यूएस जाके हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं दिया गया क्योंकि उनकी सरनेम पटेल थी। वीज़ा बार बार रिजेक्ट होता रहा। एयरलाइंस ने उन्हें कैरी करने से रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि बहुत सारी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स थी। बिकॉज ही कुड अफोर्ड इट, उन्होंने चार्टर्ड प्लेन किया, बट उसमें भी उनकी मिड एयर तबीयत खराब होने के कारण उन्हें वापस आना पड़ा। फाइनली साउथ अफ्रीका में केप टाउन में एक हॉस्पिटल ने उनका नाम रजिस्टर किया, एंड ही वॉज वेरी लकी बिकॉज ही वॉज द लास्ट फॉरेन पेशेंट who was allowed to get his name registered in the waiting list. Otherwise priority locals को ही दी जाती थी। वो वहाँ गए, 4 महीने रहे, एंड जोहानिसबर्ग में कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई और उनका हार्ट केप टाउन में पहुँचाया गया। फ्लाइंग टाइम है 2 घंटे और हार्ट को 4 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना पड़ता है। तो किसी के नोबल थॉट की वजह से उन्हें नया जीवन मिला। जब उन्हें नया जीवन मिला तो उन्होंने ना सिर्फ ये देखा कि वहाँ पे कितनी अवेयरनेस है, बट वहाँ पे सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड है। 2 घंटे के फ्लाइंग टाइम के बावजूद जोहानिसबर्ग से केप टाउन को हार्ट को पहुँचाया गया और एक व्यक्ति के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके कारण व्यक्ति को नया जीवन मिला। सो इसी विचार के साथ जब वो वापस इंडिया आए
उन्होंने इस NGO की शुरुआत की, जो उन्हें दूसरा जीवन प्रदान हुआ है, उसके ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके और गवर्नमेंट के साथ काम करके एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना सके ताकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग की प्रतीक्षा के कारण ना हो। उसी विचार से उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की। ऑर्गन डोनेशन की कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इंडिया हैज़ द लोएस्ट रेट ऑफ ऑर्गन डोनेशन इन द वर्ल्ड, 0.26 per million population. Highest rate है स्पेन का, which is 35 per million population. यानी हर 10 लाख लोगों पे 35 लोग ऐसे हैं स्पेन में जो अपने अंगों का दान कर रहे हैं। India, despite having the highest population, the rate is as low as 0.26. हर 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो अपने अंगों का दान कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा देश ऑर्गन डोनेशन को लेकर कितना पीछे है। कैडावर ऑर्गन डोनेशन, हर रोज 15 लोग अपना जीवन गंवाते हैं क्योंकि इनफ ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं है। ऑर्गन एक ह्यूमन बीइंग ही दे सकता है दूसरे ह्यूमन बीइंग को, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो हर लोग वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम होता है उनमें से 15 लोग पूरे देश में अपना जीवन गंवाते हैं बिकॉज नॉट इवन इनफ ऑर्गन्स आर देयर। Every 18 minutes a new name is added to the list. जब आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल में, ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में वेटिंग लिस्ट होता है, उसमें अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता है। जब आपका नंबर आएगा तब आपको ऑर्गन मिलेगा। तो हर 18 मिनट में एक नया नाम रजिस्टर होता है इस वेटिंग लिस्ट में। और जो लोग वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखाते हैं उन्हें 6 महीने से लेकर 4 साल तक का वेटिंग टाइम दिया जाता है। कई बार लोग वेट करते करते अपना जीवन गंवा देते हैं। अगर गुजरात की मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर जो अहमदाबाद में है, जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट्स होते हैं पूरी इंडिया में, वहां पे आज अगर मैं अपना नाम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लिखवाती हूँ तो पहले तो वो लिखाएंगे ही नहीं क्योंकि वेटिंग लिस्ट ही इतना लंबा है। द मिनिमम वेटिंग टाइम इज 5 years. So if I need a kidney transplant today, I have to wait minimum 5 years to get a kidney. So you can imagine कि waiting list कितना लंबा होगा। A single donor, यदि आप और मैं अपने अंगों का दान करने का निर्णय लेते हैं तो हम करीबन 8 लोगों को नया जीवन दे सकते हैं। ये कुछ रफ पिक्चर है नीड वर्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन डोनर्स। इससे आपको आइडिया आएगा कि कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके सामने अवेलेबिलिटी कितनी कम है। हमें करीबन 2 लाख किडनीज की ज़रूरत पड़ती है हर साल, उसके सामने सिर्फ 5000 ही डोनेट हो पाती है। 1 लाख लिवर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसके सामने सिर्फ 708 लिवर्स डोनेट हो रही है। 50,000 हार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसके सामने सिर्फ 339 हार्ट्स डोनेट हो रही है। एंड 1 लाख कॉर्नियास यानी आइज की ज़रूरत है जिसके सामने सिर्फ 25,000 कॉर्नियास डोनेट हो रहे हैं। ऑर्गन डोनेशन क्या है? आई एम श्योर आप यहाँ उपस्थित सभी लोगों को पता है। जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान करता है उसे ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। जो व्यक्ति डोनेट करता है उसे डोनर कहते हैं और जिस व्यक्ति को ऑर्गन मिलता है उसे रेसिपिएंट कहते हैं। एंड बहुत ज़्यादा बोली, अब आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी। आई एम श्योर ऑर्गन डोनेशन, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ऑर्गन डोनेशन के बारे में सबको पता है। तो मैं कुछ आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है किन किन अंगों का दान हम हमारे शरीर में ऐसे कौन से अंग हैं जिनका दान हम कर सकते हैं? एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस कैन स्पीक। किडनीज, हार्ट। ओके, मैं इन दोनों ऑर्गन के बारे में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। सो आइज, लिवर, बोन मैरो, स्किन, lungs. Okay, any other organ? Whole body for the medical purpose. Whole body, okay. Okay, very nice. काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यूजुअली इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, लोगों को पता नहीं होता है। सो हमारी बॉडी में ऐसे कई अंग और कोश हैं जिनका दान हम कर सकते हैं। ऑर्गन्स जैसे कि किडनीज, हार्ट, लिवर, लंग्स, पैनक्रियास एंड इंटेस्टाइन।
Tissues such as corneas यानी eyes, bone marrow, skin, tendons, heart valves, ligaments, etc. तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने ऑर्गन्स डोनेट करके 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है, और यदि वे अपने टिश्यूज भी डोनेट करते हैं तो 50 लोगों को हम नया जीवन दे सकते हैं। So we have the power to save as many as 50 lives. वर्षा जी ने जैसे कहा कि woman has the power to give a life, but God has given us one more chance to save others' lives. Sorry, to create a life, but we can always save lives by donating our organs. We talk about recycling these days, you know, recycle, सब कुछ कहा जाता है कि आप recycle करिए, reuse करिए. Organ donation is the best form of recycling. You not only recycle your organs, but also save lives in turn. अब मेडिकल फील्ड में काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रही है, जिसके कारण ये जो ऑर्गन्स की लिस्ट है वो लंबी हो गई है काफ़ी। आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा डबल हैंड ट्रांसप्लांट्स के बारे में। सो इंडिया भले ऑर्गन डोनेशन में पीछे हो, लेकिन डबल हैंड ट्रांसप्लांट्स में इंडिया लीड्स द वर्ल्ड। सो हैंड ट्रांसप्लांट रिसेंटली ही शुरू हुआ है, पिछले 3 से 4 साल पहले। कई लोग जो अपने हैंड्स गंवा देते हैं इन एक्सीडेंट्स और सोल्जर्स इन वॉर्स, उनके हैंड्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, एंड इंडिया इज लीडिंग द एंटायर वर्ल्ड इन डबल हैंड ट्रांसप्लांट। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज में फुल फेस ट्रांसप्लांट भी होने लगा है, राइट, जिनका फेस अगेन डैमेज हो गया हो बहुत बुरी तरह इन एक्सीडेंट्स और इन वॉर्स और इन बर्न्स एक्सेट्रा। Full face transplant is also being carried out these days. So organ donation हमने पढ़ा क्या होता है, हमने सुना क्या होता है। 2 तरह के organ donation होते हैं, living donation and cadaver donation. I'm sure living donation as the name suggests सबको पता होगा। अगर जीते जी कोई व्यक्ति अपने organs donate करता है तो उसे living donation कहते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि किन अंगों का दान हम जीते जी कर सकते हैं? किडनी, लिवर, किसी ने आइज भी बोला, बोन मैरो, स्किन, ब्रेन, ओके, एनी अदर? हेयर, ओके, हेयर लाइफ सेविंग नहीं है बट स्टिल क्या? ओके, एनी अदर ऑर्गन्स दैट कम्स टू योर माइंड? Skin, okay, somebody already said skin. Any other organ? मैंने लिस्ट बताई थी पहले. Anything from that you remember? Intestine. Sorry? Intestine, okay. Okay. Living donation में हम सिर्फ एक किडनी डोनेट कर सकते हैं. A part of our liver, because liver is the only organ in our body which regrows itself. And a part of lung, a part of pancreas can also be donated. Pancreas और lung regrow नहीं होते, liver regrow होता है, इसलिए उसका कुछ हिस्सा हम जीते जी डोनेट कर सकते हैं। आइज, जिसने भी बोला कि आप करेंगे जीते जी आइज डोनेट, तो फिर आप कैसे देखेंगे? तो लोगों का जवाब आता है मैं कहाँ से देखेंगे, बट स्टिल nobody donates, so it is not allowed. Brain donation even after death it is not possible, so brain transplant is totally out of the question. Skin is a tissue, right? It does not save life, it enhances the quality of life. So yes, bone marrow, again, हाँ, bone marrow life save करता है. But as far as organ donation is concerned, right, living donation में सिर्फ ये 3 organs भी donate हो सकते हैं, that too to the blood relatives as per the law. Cadaver donation, as the name suggests, donation after death is called cadaver donation. अब इतने सारे लोगों की मृत्यु हर रोज होती है, फिर भी क्यों ऑर्गन्स की इतनी कमी है? Even if 1% of them donate their organs, don't you think organ का शॉर्टेज काफी हद तक कम हो सकता है? काफी सारे लोग मरते हैं, राइट, हर रोज। I'm not sure about the number, but I know it is a huge number, राइट, बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन डोनेशन हर एक तरह की डेथ में मुमकिन नहीं है। Organ donation is possible only in case of brain death. किसी ने brain death के बारे में सुना है? Okay, I'm seeing some heads which are nodding. कुछ लोगों को पता है brain death के बारे में।
But organ donation revolves around brain death. Organ donation is possible only in case of brain death. हमको organ donation के बारे में पता है, but brain death के बारे में पता ही नहीं. कहीं पढ़ाया नहीं जाता, कहीं बताया नहीं जाता. Even newspaper में जो articles आते हैं वो misleading होते हैं as far as brain death is concerned. So, but organ donation is possible only in case of brain death. Tissues जो मैंने आपको बताया, eyes है, skin, tendons, heart valves, bone marrow, etc. can be donated in any kind of death. But kidneys, liver, lungs, heart ये सब brain death की स्थिति में ही मुमकिन है. अब brain death क्या होता है? Brain death एक irreversible situation है which occurs due to hemorrhage, stroke or an accidental head injury. जब आप एक brain dead व्यक्ति को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आप hospital के ICU में पाएंगे. The person will look absolutely normal to you. The person is breathing, chest is rising and falling, heartbeat visible है, but the person is dead. The brain has completely stopped functioning. The organs are functioning for some time with the help of ventilator only. अगर आप ventilator निकाल देंगे, the body will collapse. So इस केस में, because the person is dead, but his organs are still functioning, they can be used for transplantation. जो व्यक्ति ब्रेन डेड होता है वो ऑर्गन्स के साथ साथ टिश्यूज भी डोनेट करता है. अब ऑर्गन शॉर्टेज का एक मेन कारण ये भी है कि लोगों को ब्रेन डेड के बारे में पता ही नहीं है. जब हमारे कोई लव्ड वन को स्ट्रोक या एक्सीडेंट आता है और उन्हें वेंटिलेटर पे कनेक्ट किया जाता है तो हमारे मन में फर्स्ट विचार क्या आता है कि डॉक्टर साहब जितने भी पैसे खर्च हो आप वेंटिलेटर मत बंद करिएगा, कुछ भी करिए, सारे एफर्ट्स लगा दीजिए, लेकिन हमारे लव्ड वन की जान बचाइए. Right? And hospitals these days, as you know, they will continue with the ventilator. इंसान मर चुका है, but they'll still continue with the ventilator. In fact, yesterday we had a case जहाँ पे एक व्यक्ति की brain death हो चुकी थी. He was a relative of the medical superintendent of Sola Civil Hospital in Ahmedabad, जो खुद एक डॉक्टर है, जो खुद इतनी बड़ी पोस्ट पे है. उनके कोई रिलेटिव थे, उनको जाइडस हॉस्पिटल में ले जाया गया. वो ब्रेन डेड थे, व्यक्ति मर चुके थे. टेस्ट करने के बाद रिजल्ट आया, ही वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर सम टाइम, जिसके बाद वो ब्रेन डेड हो चुके थे. लेकिन डॉक्टर्स ने कहा इनको वेंटिलेटर पे ही रखा जाएगा. We will continue, we will try to save his life, we do some tests, we do this, we do that, because the hospital wanted to occupy the ventilator and of course it is the case. As a layman, हम लोग क्या कहेंगे? Yes, डॉक्टर सही बोल रहे हैं, वेंटिलेटर पे रखिए, जीवन बचाना है, don't worry about the cost, we are ready to bear the cost. But the person is actually dead. Because he was related to a medical professional, they could make out that the person is brain dead. He was shifted to another hospital, जहाँ इतने लोग अंगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. Look at the sad reality. ये कल हुआ है केस. My colleague who went there to Zydus Hospital because we are very close with the medical superintendent of Sola Civil Hospital. उन्होंने बोला कि इनको शिफ्ट करो. जब तक वो दूसरी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो, उनके ऑर्गन्स कोलैप्स हो गए. Otherwise, 8 lives could have been saved. The person collapsed. His healthy organs could not be used for transplantation, and those 8 people are still waiting for their turn in the transplant waiting list. So this is the sad reality of our country of organ donation. Now people often confuse between brain death and coma. जब हम brain death की बात करते हैं तो लोगों को लगता है वेंटिलेटर पे है, शायद कोमा में होगा. But नहीं, कोमा and brain death are two different situations. जैसा कि मैंने बताया, brain death is actually death. कोमा में व्यक्ति जीवित होता है, कोमा में रिकवरी के चांसेस होते हैं. A person may or may not recover, but brain death is an irreversible situation. यदि कोई व्यक्ति brain death होता है तो वो वापस जीवित नहीं हो सकता. दोनों हेड इंजरी के कारण होते हैं, लेकिन कोमा में व्यक्ति जीवित होता है, इसलिए कोमा में अंगदान मुमकिन नहीं है. ब्रेन डेथ की स्थिति में ही अंगों का दान किया जा सकता है. अब हमने ये देखा कि कौन से अंगों का दान हो सकता है, किस स्थिति में ये दान हो सकता है, बट इन अंगों को कब निकाला जाए. हमने ब्लड बैंक के बारे में सुना है, आई बैंक के बारे में सुना है, स्किन बैंक, बोन बैंक भी होता है, लेकिन ऑर्गन बैंक नहीं होता है.
we cannot store and preserve organs. Organs should be transplanted as soon as they are retrieved from the body. हार्ट और लंग्स की बात करें तो 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाने चाहिए, लिवर 12 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए और किडनीज 48 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। यानी पेशेंट की बॉडी से निकाले, डोनर की बॉडी से निकाले जाने के बाद इस समय के अंदर उसको रेसिपिएंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर लेना है। वी कैन नॉट प्रिजर्व ऑर्गन्स, आई टाइम की तरह आई स्टोर नहीं की जा सकती, राइट? सो ऑर्गन्स कैन नॉट बी प्रिजर्व, दे शुड बी ट्रांसप्लांटेड एज सून एज दे आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द बॉडी वंस द पेशेंट इज डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड। टिश्यूज, जैसे कि मैंने आंखों की बात करी, वो किसी भी तरह की मृत्यु में दान किए जा सकते हैं, लेकिन मृत्यु होने के 6 घंटे के अंदर आप अपनी आंखें दान कर सकते हैं। अगर 6 घंटे से ज़्यादा हुआ तो आईज विल नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन, दे मे बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस बट दे विल नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन। सो आफ्टर डेथ विदिन 6 आवर्स आईज शुड बी डोनेटेड। या आई डोनेशन कहीं भी हो सकता है, घर पे ओल्ड एज के कारण भी किसी की मृत्यु होती है तो डॉक्टर्स आते हैं आईज रिट्रीव करते हैं, बट ऑर्गन डोनेशन ओनली हैपेंस इन द आईसीयू इन एन हॉस्पिटल। आई एम श्योर सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ऑर्गन्स ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। यू नो, किसी की किडनी निकाल दी गई, पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट करके यू नो उनकी किडनी निकाल दी गई और उन्हें पैसे भी नहीं दिए, या फिर एड्स भी आती है, मुझे अपनी किडनी बेचनी है क्योंकि मुझे आईफोन खरीदना है। सो कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा, राइट? ऐसी चीज़ों को रोक लगाने के लिए, टू स्टॉप ऑल दिस, द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड द लॉ व्हिच इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन 1994। तो ऑर्गन डोनेशन का जो पूरा प्रोसीजर है उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए और ऑर्गन ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये लॉ बनाया गया है। इस लॉ के 4 मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट, ब्रेन डेथ इज लीगलाइज्ड एज डेथ। ब्रेन डेथ को लीगली डेथ माना जाता है। अगर आप ब्रेन डेथ व्यक्ति देखते हैं, ही इज लीगली डेड, ही और शी इज लीगली डेड, राइट? काफ़ी बार जैसे मैंने कहा कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, वो भी काफ़ी मिसलीडिंग होते हैं। न्यूज़पेपर में लिखा जाता है ये व्यक्ति ब्रेन डेड था और उसके बाद 5 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई, बट ब्रेन डेथ को लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है, इट इज लीगली डेड। So why are you portraying it as he was dead after 5 hours? He was already dead, he or she. I'm sorry I'm using the word he again and again, but it's he or she, whatever. The person is legally dead. Trading of organs is an illegal and punishable offense. Anybody who is found buying or selling organs is punishable by law. अब हमने लिविंग डोनेशन की बात कुछ स्लाइड्स पहले की थी। लिविंग डोनेशन जो होता है वो ब्लड रिलेटिव्स में ही मुमकिन है। ब्लड रिलेटिव्स मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ ब्लड रिलेटिव्स नहीं होते बट दे आर इमोशनली रिलेटेड, सो लिविंग डोनेशन उसमें मुमकिन है। नाउ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। सपोज इफ आई नीड अ किडनी, राइट? द वेटिंग टाइम जैसा मैंने बताया सिविल हॉस्पिटल बोलती है 5 साल। वैसे तो किडनी के पेशेंट्स डायलिसिस पे निकाल सकते हैं 5 साल विद ग्रेट डिफिकल्टी, बट येस दे कैन सर्वाइव। नाउ द डॉक्टर सेज यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन डायलिसिस इवन फॉर 1 ईयर। अब मेरी फैमिली में से कोई भी कंपैटिबल नहीं है मुझे किडनी देने के लिए। लिविंग डोनेशन के लिए ब्लड रिलेटिव चाहिए, बट ब्लड रिलेटिव में से कोई भी कंपैटिबल नहीं है, किसी को बीपी है, किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, सो दे कैन नॉट डोनेट एन ऑर्गन टू मी। ध्रुव, हु इज माय फ्रेंड, is ready to donate a kidney to me, but he is not my blood relative, he is just my friend. So ऐसे केस में क्या करें? Do I die waiting for an organ? क्योंकि blood relative तो है नहीं। So ऐसे केसेस में to save more lives, government has passed a provision where you need to get an approval from the authorization committee. ये authorization committee ये verify करती है कि हमारे बीच कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, मैं ध्रुव को कोई पैसे नहीं दे रही या फिर कैश या काइंड रिपे नहीं कर रही फॉर हिज ऑर्गन। सो दिस स्टॉप्स द ट्रेडिंग ऑफ ऑर्गन्स। बट जैसा कि वर्षा जी ने बताया, इन दिस केस ऑल्सो women are exploited, since all women are present here and this conference is also about women. So हमारे देश में एक कंसेप्ट है which is known as kidney marriages. I am a man, I need a kidney,
I know I need a kidney transplant, maybe next year. तो मैं शादी कर लूँगा from an economically backward background girl, just for the sake of kidney. पहले टेस्ट कराई जाएंगे, ब्लड ग्रुप मैच होता है, कंपैटिबल है या नहीं, राइट? 6 महीने 8 महीने हम अपनी शादी चलाएंगे and then we'll go to the hospital. I need a kidney transplant, my wife is ready to donate a kidney to me. Kidney donation होगा and then of course the man will go his own way and the female will get divorced and will get the money. So this is how people are actually exploiting, and women are the major section who get exploited in this case. इसके अलावा भी काफ़ी केसेस में लिविंग डोनेशन में जब भी घर में किसी मेल मेंबर को ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, it is always the females of the family who come forward to donate their organs. इन-लॉज को ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर इन-लॉ से उम्मीद की जाती है कि ये डोनेट करेंगी rather than their son themselves. Right? So this is how women are treated unfairly over here as well. पिछले 16 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ. बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं, काफ़ी फनी भी हैं, which have come across in my career. The most common myth that I've heard is, if I donate my eyes in this birth, I'll be born blind in my next birth. क्या आप में से किसी ने सुना है? नहीं सुना है, I'm glad. क्या आप में से कोई इस बात को मानता है? क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं अपनी आंखें डोनेट करती हूँ तो नेक्स्ट जन्म में मैं अंधी पैदा हूँ. Is it possible? No, right? What if I donate my heart? Can I be born without a heart? Not possible, right? So it is just a myth. अगर आप सुनते भी हैं, प्लीज इसे मत मानिएगा. That is not true, and it should not stop you from donating your organs. So once I sign up, I will not get appropriate medical care. ऐसा नहीं है. जो डॉक्टर्स आपको ट्रीट करते हैं और जो डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट में इन्वॉल्व होते हैं, वो दो अलग अलग टीम्स हैं. ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्गन डोनेशन के लिए साइन अप किया है तो बोलेंगे ओके यू आर डेड, नाउ वी नीड योर किडनीज. नहीं, ऐसा नहीं होता है. दे आर 2 separate teams. All the efforts will be made by the doctors to save your life. Only then organ donation comes into the picture. और जैसा कि मैंने बताया कुछ टाइम पहले, ऑर्गन डोनेशन को पिक्चर में आने ही नहीं देते. आपको मरने के बाद भी वेंटिलेटर से कनेक्टेड रखते हैं. सो डोंट वरी, ऐसे तो ऑर्गन्स निकालेंगे नहीं. माई रिलीजन डज नॉट परमिट. कोई भी इस बात को मानता है कि आपका जो भी धर्म है वो आपको अंगदान करने से मना कर रहा है या आपको मोक्ष नहीं मिलेगा. ऐसा मैंने सुना है कि अगर हम अपने अंगों का दान करेंगे तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा क्योंकि पूरी बॉडी होनी चाहिए. किसी ने सुना है ऐसा या कोई इस चीज में मानता है? ऐसा नहीं है. व्हाट इफ यू लूज योर लिम्स इन एन एक्सीडेंट में कुछ आप अपना ऑर्गन लूज कर देते हैं या नॉर्मल सी सर्जरी कराते हैं, गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी, फिर तो आपका गॉल ब्लैडर नहीं होगा. हाउ विल यू गेट मोक्ष? बट उस समय नहीं सोचते. लेकिन किसी को जीवन दान देने की बारी आती है तो हम सोचते हैं नहीं, हमारी पूरी बॉडी नहीं हुई तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, हमारा धर्म अलाउड नहीं करता. तो दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो किसी का जीवन बचाने के लिए मना करता हो. दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो किसी की मदद करने के लिए मना करता हो. इसीलिए दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो आपको अंगदान करने के लिए मना करता है. काफ़ी सारे ऐसे रिलीजन्स हैं हमने देखे हैं जो ऑर्गन डोनेशन के लिए कभी आगे नहीं आते, द माइनॉरिटी, द मोमेडियन पीपल. लेकिन जब उन्हें अंग की ज़रूरत पड़ती है, they always get their name registered. But whenever it comes to organ donation, in 16 years of my career, I've never seen one Muslim family come forward. I'm sorry, I'm not being racist over here, but this is what I have experienced. They are still very reluctant when it comes to organ donation. I'm not against their religion, but it is just, my observation. I'm too old to donate. There is no age limit for organ donation. The youngest donor in India is a 4 days old baby. 4 दिन की बच्ची ने अपने organs donate किए थे. And the oldest donor is a 92-year-old gentleman from Delhi. तो कोई age limit नहीं होती है organ donation की. It can happen any time and anywhere. All my organs will be taken away only if I specify one. No, only organs for which you have given consent
will be retrieved. My body will be disfigured post-death. I find this myth very funny because people are worried about how they look once they die. I mean, you will not be able to see. So that is also not true. Medical advancements have taken place. Once the organs are retrieved, the body is surgically stitched and respectfully returned to the family. Even in case of eye donation, a proper bandage is placed over the eyes so that the body does not look disfigured. My family will be charged for organ donation. There are no charges for organ donation. The organ is a donation, is a gift that you are giving. So there are no charges for it. The recipient just has to pay for the transplant surgery. My organs will go only to the rich people. That is also not true. As I said, waiting list में नाम register होता है, and according to the priority, organ मिलता है. There can't be too many people needing organs. जैसा कि मैंने शुरू की slides में बताया, every 18 minutes a new name is added. So there are lakhs and lakhs of people who are actually awaiting a transplant. अगर मेरी प्रेजेंटेशन के बाद आप इंस्पायर हुए हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो बाहर एक रजिस्ट्रेशन डेस्क रखा गया है जहां ब्रोशर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल है. आप रजिस्टर कर सकते हैं. इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी रजिस्टर कर सकते हैं. आप रजिस्टर करते हैं या आप इंस्पायर हुए हैं, तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, यदि आप अपने अंगों का दान करना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली को बताइए कि आपकी इच्छा है कि मृत्यु के बाद आपके अंगों का दान किया जाए. अब फैमिली को बताना क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे देश के लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ आवर कंट्री, फैमिलीज कंसेंट इज अ मस्ट एट द टाइम ऑफ डोनेशन. आप ब्रेन डेथ हो भी जाते हैं, ऑर्गन डोनेशन करना भी चाहते हैं, लेकिन उस समय अगर फैमिली मना करेगी तो ऑर्गन डोनेशन नहीं हो पाएगा. लेकिन यदि आप अपनी फैमिली को पहले ही इन्फॉर्म करते हैं तो मृत्यु के बाद आपकी आखिरी इच्छा पूरी करने में उन्हें मदद मिलेगी, एंड सम लाइव्स कैन बी सेव्ड. So please inform your family if you wish to donate your organs. Shatayu's role is to create awareness, coordinate the process of organ donation and facilitate organ donation. ये पूरा प्रोसीजर मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ. I don't want to bore you guys again. These are a few activities which have been done by us. The gentleman in blue is the founder of our organization. He had undergone heart transplant in 2004. He has completed almost 20 years with his new heart and new life. And he has, through this NGO, we have made aware more than 5 crore people all across India. This is the run that we did for creating organ donation awareness. We also work with various hospitals to train the nursing staff, ICU staff, intensivists and doctors for organ donation so that they can easily identify a brain dead donor and counsel the family. कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ हमने एक प्रोग्राम किया है. शतायु ने इंडिया की फर्स्ट कॉमिक बुक ऑन ऑर्गन डोनेशन भी लॉन्च की. जैसा कि मैंने कहा, ऑर्गन डोनेशन की कोई एज नहीं होती, बट इफ वी स्टार्ट एजुकेटिंग द किड्स अर्ली, दे विल एजुकेट द एंटायर फैमिली. तो इसीलिए बच्चों को एक मज़ेदार तरीके से इस सीरियस टॉपिक के बारे में समझाने के लिए हमने सुपर डोनर नाम की एक बुक लॉन्च की, जिसमें ऑर्गन डोनेशन एक स्टोरी के फॉर्म में बताया गया है. We distributed more than 1.5 lakh copies across all schools in Ahmedabad. तो इन बच्चों ने जाके अपने घर पे सभी को ना सिर्फ अवेयर किया, बट उनसे प्लेज भी करवाया फॉर ऑर्गन डोनेशन. कॉलेजेस में भी हम काम करते हैं. Shatayu was also awarded the best NGO by the Honorable Chief Minister. In fact, created by Shatayu, we have been conducting awareness sessions since past 16 years. We have made aware more than 5 crore people, more than 1 lakh people have registered with us. अब 5 crore और 1 lakh में बहुत बड़ा गैप है, लेकिन जब हम 500, 600, 1000 की ऑडियंस को एड्रेस करते हैं तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन उसमें से सिर्फ 10, 20, 30 लोग रजिस्टर करते हैं. Despite explaining them the procedure, despite them being aware about organ donation, despite them showing the number of people who are waiting. So these are the number of people who actually register for organ donation. So these are some of our success stories, or I would say heroes who unfortunately died of brain death and decided to donate their organs and saved around 8 lives. Thank you. With that, I end my presentation. I don't know if there is any
question answer session over here. But अगर किसी को सवाल है तो please feel free to ask me. Yes, I can see a few hands. Please, madam. Second, I'll come back to you. I'm aware of organ donation and I've already asked my husband to do that. But family में ऐसे होता है कि वो बोलते हैं कि at that time I should be in that position to think about it and you know go ahead with that. So how does it happen? If I fill the form, I have informed my family also. So does hospital, if I'm brain dead, does hospital approach or how the process works? Yes, so very good question. ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है. इनका क्वेश्चन है कि मैंने ऑर्गन डोनेशन के लिए फॉर्म भर दिया, फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया, अब वो सिचुएशन आती है तो क्या हॉस्पिटल हमसे पूछेगी, क्या हमको बताना है या आप लोग आएंगे क्योंकि हमने आपके साथ फॉर्म भरा है? तो इसका जवाब ये है मैडम, फैमिली को जब मैंने बताया कि इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, फैमिली हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव. हॉस्पिटल्स रेयरली आस्क. अगर आप किसी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में हैं तो शायद आपसे आपकी फैमिली से पूछा जाएगा कि क्या आप ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं. अदरवाइज हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और नर्सेज दे डोंट यूजुअली आस्क. इट इज़ द फैमिली हु हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव. हम भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने सारे डोनर्स हैं. वी डू नॉट नो वेयर द पर्सन इज, व्हेन एंड वेयर एंड व्हेन हाउ दे आर डूइंग दैट. सो इसीलिए फैमिली को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है ताकि फैमिली हमको कॉल कर सकती है. हमारे पास 24 आवर हेल्पलाइन नंबर है. अगर आपको हॉस्पिटल से या जहाँ भी आप हैं वहाँ सही जवाब नहीं मिल रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपको नियरेस्ट ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल से कनेक्ट करेंगे और पूरे प्रोसीजर में भी हेल्प करेंगे. सो दैट इज़ हाउ रजिस्ट्रेशन हेल्प्स. आप चाहें तो हमारे साथ रजिस्टर करें या गवर्नमेंट की सेंट्रलाइज बॉडी है नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. आप वहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं. अगेन डोनेशन के टाइम पे इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर आंसर्स, प्लीज कनेक्ट टू एनी हेल्पलाइन नंबर. Yes, please, madam. Somebody from the back. Okay, no problem. So during the break, you can ask when the sessions are over. Okay, can I just take one more minute? One more minute. You are not allowed to ask questions, but I will ask 2 questions. भगवान न करे ऐसी सिचुएशन आए कि आप लोगों को ऑर्गन या आपके किसी फैमिली मेंबर को ऑर्गन की ज़रूरत पड़े, तो क्या आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाएंगे? Yes? किसी का जवाब ना है? नहीं. आई एम अज्यूमिंग सबका जवाब हाँ ही है, राइट? ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ यू विल डोनेट ऑर्गन्स? ओके, डोंट जस्ट रेज हैंड्स फॉर रेजिंग हैंड्स. आई एम वेरी ग्लैड इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया, बट यूजुअली ऑडियंस इतने हाथ नहीं उठाती है. जब लेने की बारी आती है तब सब यस बोलते हैं, जब देने की बारी आती है तो बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं. तो जिसने भी हाथ नहीं उठाया, प्लीज थिंक अबाउट इट. व्हेन यू नीड इट यू रेज योर हैंड, बट व्हेन इट इज टाइम टू गिव यू आर सेइंग थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, ma'am, for your valuable words. Your message has beautifully added to the essence of today's theme and has given us another meaningful perspective on strength, purpose and empowerment. I request Dr. Amita Jaspal, Executive Director, GEO, to kindly felicitate ma'am.